हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो यूनिट 4 है, इसमें जो हमारा मेन एक टारगेट है वो है थ्योरम, यानी गाउसियन कर्वेचर जो है वो इंट्रिंसिक है। यानी अगर हमें EFG पता है हर एक पॉइंट पे, अगर हमें EFG यानी फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, और अगर हमें ये पता है तो हमें मेट्रिक पता है, बिकॉज ds स्क्वायर जो छोटी सी डिस्टेंस है on a surface is measured by this formula. You can always show it is ds square is equal to E du square plus twice f du dv plus g dv square. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये तीन नंबर्स पता है, which are basically numbers evaluated at a, they are just three numbers which tell us how to measure infinitely small distance on the surface. तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो we can find the Gaussian curvature. So that's what we mean that it is intrinsic. तब इससे रिलेटेड हमने किया था गाउस की जो इक्वेशंस हैं, गाउस फॉर्मूली जिन्हें हम कहते हैं फॉर अ सरफेस। गाउस फॉर्मूली मैंने कहा था ऐसे, इट इज अबाउट, देखो जो r है हमारी सरफेस, राइट, विच इज ऑफ which depends upon uv, इसके दो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ru rv, राइट। देन यू हैव the second order partial derivatives, वो चार हो सकते हैं, ruu, ruv, rvu and rvv, लेकिन ये दोनों बराबर हैं because mixed partial derivatives were equal if second order partial derivatives are continuous, which in this case is true. So we have three second order partial derivatives, and we want to write them as a linear combination of n, ru and rv, and we want to find what should be the scalars here. If I write them as linear combinations, if I want to write RUU as a linear combination of N, RU and RV, so what should be the scalars, right? अब N के लिए तो scalar ढूंढना easy है, because RUU dot N जो होगा, it would be whatever you have AN plus, जैसा कि मैंने कल कहा था, B sub RU plus C sub RV dot N, और हमें पता है n की ये प्रॉपर्टी की it is perpendicular with RU and RV both, so it would be just a n dot n, so that's equal to a, यानी ये जो a है यहाँ पे, it is the same as RUU dot n, which is nothing but n. यानी पहला वाला स्केलर तो हमें पता ही, that is the first of the second order fundamental magnitude. So similarly, what should be here and here? So that's what we are going to look for. And the important thing is Gauss showed that these scalars would only depend upon EFG. यानी ये जो हमें scalars यहाँ पे होंगे, they would be some combination of EFG and their partial derivatives with respect to n. यानी हमने कहा था for a surface, rather for a regular surface, for a surface r sub uu, यानी मैं लिखूँ r is equal to r at uv, वैसे उस लेक्चर में हो गई आधा, तो I need not repeat completely, कि r sub uu can be written as ln plus lr sub u plus lambda r sub v. इसी तरह से r sub uv can be written as mn plus m sub ru plus, इसको हम usually लिखते हैं mu sub rv, and r sub vv would be n vector plus n sub ru plus nu sub r. So अब ये है कि गाउस फॉर्मूले के कि ये जो LMN है and lambda mu mu है, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स, are suitable functions of EFG, ये important है, and
and their partial derivatives with respect to f. So that's मतलब basically हमें दिखाना है मतलब how LMN and lambda mu nu depend upon EFG. What is the formula? Their partial derivatives with respect to U and V. So ये हमें करना है. So okay. So पहली बात तो है कि क्या हम इसको लिख सकते हैं as a linear combination of 3 Z vectors, है ना? फिर हम evaluate करेंगे ये क्या होना चाहिए LMN and lambda mu. The answer is yes. Why? प्रूफ में हम वही पहली बात लिखेंगे जो कि मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, that R sub u, R sub v and this vector n, they form a basis. They are mutually, they are linearly independent vectors because R sub u and R sub v जो है, they are linearly independent because for a regular surface RU cross RV cannot be zero. लेकिन अगर ये linearly dependent हुए तो ये zero हो जाएगा. So they are linearly independent. And n is perpendicular and does not lie in the plane RU and RV. So therefore it is also linearly independent of RU and RV. So it means n R sub u are 3 vectors in my R3 space which are linearly independent. Hence it should form a basis. क्योंकि जो भी 3 linearly independent vectors अगर तुम R3 में लोगे, it would form a basis. So हम लिखेंगे it forms a basis of R3, and since LMN are the resolved parts of the normal vector, are resolved parts R sub u of R sub uu, R sub uv and R sub vv. Along n, by that I mean nothing. इसका मतलब simply है कि L is defined as R sub uu dot n respectively. So it's obvious we can write it. Therefore we can write R sub uu is equal to Ln, जो कि मैंने अभी बताया, L sub ru plus lambda sub rv, call this equation 1, and R sub uv को मैं लिख सकता हूँ mn plus m small m R sub u plus mu R sub v, call this second, and R sub vv must be equal to, any vector can be written like this, but then I can say same applies to this. Okay, let's call this equation 3. लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ये क्या है. So wire of course LMN and lambda mu nu are scalars to be determined, जिन्हें हमें ढूंढना है और हम इनको ढूंढेंगे. तो ये है अपना पहला क्या बोलते हैं स्टेप. इसके बाद हमने थोड़ा सा कल भी किया था, लेकिन मैंने सोचा कल ये शायद पूरा ना हो तो हम आगे बढ़ गए थे. नहीं, अब हमें पता है E जो है वो बराबर है RU के, ये तो तुम्हें पता ही है. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, E बराबर है RU डॉट RU के, RU डॉट RU के. F जो है वो है RU सब डॉट RV के, और G जो है of course it is also equal to RV dot RU because dot product is commutative, and this is G is my RV dot RV. Now अगर मैं ढूंढना चाहूँ E differentiated partially with respect to U, यानी अगर मैं ढूंढूं del E by del U, this would be del RU dot RU divided by the partially differentiated with respect to U, and using the chain the product rule, so that will be RUU dot RU plus RU dot R sub UU, and using the commutativity of the product, so this is just twice RU dot RUU, right? इसी तरह से अगर मैं FU ढूंढूं, यानी चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
ई सब यू, यस ऐसे ही रखे और यहाँ लिख देते, ई सब यू जो होगा वो होगा ट्वाइस आर यू डॉट आर यू यू। इसी तरह से एफ अगर मैं लूं, एफ यू बराबर होगा of course del by del u of r sub u dot r sub v. अब इसको again using the product rule, so that would be r u u dot r v plus r u dot r u v या v u, एक ही बात है। इसी तरह से g sub u मैं अगर डायरेक्ट लिखूं बराबर होगा ट्वाइस आर वी डॉट आर वी वी, राइट। इसी तरह से, और मैंने क्या लिखा, मैंने गलत लिखा शायद, हाँ जी सब यू के साथ कर रहा हूँ है ना, इट शुड बी, चलो इसको यही है ना, मैंने मत किया इसको, मैंने ऐसे लिख दिया, सो इट वुड बी del by del u of r v dot r v, so that would be I think twice r u v आएगा, twice r v dot r u v, है ना, या v u या u v एक ही बात है ना। इसी तरह से अब तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v अगर निकालेंगे हम, सो ई वी होगा, लेट मी राइट इट एज ई वी किसके बराबर होगा, डायरेक्ट लिखूं मैं, ई वी होगा डेल बाई डेल वी twice r u आर v, यू डॉट आर यू, वो होगा ट्वाइस आर यू डॉट आर यू वी, ठीक है जी सर। ओके। इसी तरह से एफ सब वी होगा, एफ सब वी होगा आर यू वी डॉट आर वी प्लस आर यू डॉट आर वी वी। इसी तरह से जी सब वी होगा ट्वाइस आर वी, ऑब्वियसली तो सबसे इजी है, so let's call this set of equations 4. अब हम इनको अगर थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे, I will get another set of equations, यानी it would imply that now solving for r sub u, यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू आर यू यू आर यू यू आर यू आर वी, जो ना ये पॉसिबल, जो भी ऑल पॉसिबल ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एटसेट्रा, इन सब के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, आई मीन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर हम उनको उनके लिए सॉल्व करेंगे इसमें से मैनिपुलेट करके, जैसे जैसे पहले से मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, आई विल गेट आर यू डॉट आर यू यू बराबर होगा 1/2 ई सब यू, है ना। इसी तरह से आर वी, अगर मैं अब दूसरी वाली इक्वेशन लूं, आर वी डॉट आर यू यू, दैट वुड बी इक्वल टू एफ सब यू, है ना, ये वाला अगर मैं ले लूं दूसरी वाली इक्वेशन, माइनस आर यू डॉट आर यू वी, राइट। लेकिन अगर मैं ईवी पे फोकस करूं, लेकिन ईवी है ट्वाइस आर यू डॉट आर यू वी, सो इट शुड बी बेसिकली एफ सब यू माइनस 1/2 ई सब वी यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये तो हो गया दूसरा मेरा। इसी तरह से ये 6 मिलेंगे, ऑफ कोर्स ऑल पॉसिबल कहने का मतलब। इसी तरह से तुम देखोगे आर यू डॉट आर यू वी बराबर होगा फ्रॉम दिस थिंग ई वी, so it would be 1/2 EV E sub V। इसी तरह से चौथा होगा RV dot RUV, that would be of course 1/2 GU, ये वाली इक्वेशन यूज करके it would be 1/2 G sub U, and और दो आएंगी RU dot RVV,
RU dot RV भी यहाँ पे है, so it would be F sub B minus 1 by 2 G sub U, and last but not the least होगा अपना RV, वो तो obvious है, RVV होगा 1 by 2 G sub V। तो ये जो 6 इक्वेशंस हैं, 6 की 6, इसको हम नाम देंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ये सेट को हम रखेंगे इक्वेशन 5 नाम, ये जो 6 इक्वेशंस है, ठीक है ना। अब मैं लेता हूँ अपनी इक्वेशन 1 को। मेरी इक्वेशन 1 जो थी, चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 वाज R sub u is equal to L times n plus lambda times R sub u plus, और क्या था, नहीं मैंने गलत किया, L times और lambda times R sub, ये मेरी इक्वेशन 1 है। Let me check, हाँ, it is ln plus lru lambda। तो अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो what we do, multiplying both sides of equation 1 by r sub u and r sub v scalarly, यानी डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे इसका scalarly, we get, तो हमें क्या मिलेगा, I will get ru dot ruu बराबर होगा, of course n के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा because it's perpendicular, so it would be L ru dot ru plus lambda times ru dot rv, और अगर rv के साथ करेंगे इसी को तो similarly you will get rv dot ruu, again n के साथ rv का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो बचेंगे ये, it would be L times ru dot rv plus lambda times rv dot rv, so this is what you get। and using 5, अब अगर हम 5 यूज करें, इक्वेशन 5 अगर हम यूज करें तो व्हाट डू यू गेट, 5 मीन्स जिसमें हमने इनके वैल्यूज निकाले हैं, जैसे हमने ru डॉट ru का है 1 by 2 eu, इसी तरह से ru डॉट rv डॉट ru का ये वैल्यू है, ये दोनों पहला सेट अगर हम यूज करें तो यूजिंग 5, कहाँ गया, ओके, यूजिंग 5 we should get what, let me write it down, we should get 1 by 2 e sub u लेफ्ट हैंड साइड 5 में से, लेकिन हमें ये भी पता है ru डॉट ru खुद है बराबर e के, और ru डॉट rv खुद है बराबर f के, ये पहली इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से ये जो है दूसरी वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा fu माइनस 1 by 2 e sub v, लेकिन हमारा जो राइट हैंड साइड है वो है सिंपली दिस इज f, so it is lf plus lambda times g, यानी अगर मैं इसको थोड़ा नीट कर दूं, इट इंप्लाइज दैट, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, यानी ट्वाइस el प्लस ट्वाइस lambda माइनस e sub u इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ भी ट्वाइस fl, ठीक है, f l कहाँ से आ गया, ये स्मॉल l होना चाहिए ना, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया, ये l है, f है, हाँ, ट्वाइस fl प्लस lambda g, यानी ट्वाइस g lambda माइनस, ऑफ कोर्स ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ट्वाइस fu माइनस e sub v, ऑफ कोर्स ये ऐसे। नाउ वी वांट टू फाइंड सपोज l and lambda, है ना, हमें यही तो चाहिए ना, l lambda न्यू और lm, यानी हमें चाहिए l m n एंड lambda म्यू न्यू, इन 6 नंबर्स का वैल्यू होने चाहिए। Of course, we can solve them in terms of EFG. I've got 2 equations with 2 variables, जिनको मैं unknowns, जिनको मैं ढूंढना चाहता हूँ. So I just apply we solve by cross multiplication method, और किसी भी मेथड से जो भी तुम्हें पसंद हो. तो you solve 2 equations in 2 variables and get, मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो you would have L divided by this into this, divided by then F divided by, जो भी तुम्हें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको डायरेक्ट लिख सकते हो.
I will get, which implies that L divided by minus 2f into twice f sub u minus e sub v plus twice g e sub u. It is just applying cross multiplication method. You can check कर सकते हो. Is equal to lambda divided by minus twice e sub u f plus twice e into twice f sub u minus e sub e. ये सारे का सारा is equal to 1 divided by जो last वाला हमारा बचेगा, that is just 4eg minus 4f squared. अब as you can see, दो यहाँ पे कैंसिल हो ही रहा है throughout, क्योंकि दो कॉमन आएगा. So I can just, अगर मैं ये दो कैंसिल कर दूं, इन्हें लिख देते हैं. That is, चलो, L divided by 2 कॉमन, अंदर बचेगा g e sub u, प्रॉपर्टी को लिखते हैं, minus twice f sub u plus f e sub b is equal to lambda divided by twice into 2efu, then I have minus और क्या eev, और then I have minus feu. ये यहाँ ठीक से नहीं बन रहा, चलो, is equal, doesn't matter. It is 4 into eg minus f square, but you know eg minus f square can also be written as h square. So that would imply that अगर मैं L must be equal to 2 to cancel, it should be g e sub u minus twice fu plus fev whole divided by twice h square. इसी तरह से lambda बराबर होना चाहिए twice e f sub u minus e ev minus feu whole divided by twice h square. तो हमें मिल गया L और lambda, तो हमने निकाला in terms of EFG and their partial derivative, जो कि हमारा contention है basically. So we call this equation 6. Similarly, अब हम सारा नहीं दिखाएंगे. Similarly, अगर हम यही process उनके साथ करें, तो तुम कर सकते हो on multiplying scalarly both sides. अगर हम equation 2 निकालते by r sub u and r sub v successively, and using our set of equations 5, हमें मिलेगा, जो मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिखूंगा, मतलब तुम चाहे तो कर सकते हो, 1/2 e sub v is equal to m times eu plus mu times f, and 1/2 gu होगा m times f plus mu times g. And अब फिर ये दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हैं, and solving for m and mu, we get m is equal to 1 by twice h square. ये simple calculations हैं basically. g e sub v minus f gu, और हमारा जो mu होगा 1 by 2 h square, इसी तरह से into e g sub u minus f e v. You can call this equation 7. तो 4 तो हमें मिल गए, अब हमें 2 और चाहिए, उसके लिए इक्वेशन 3 यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही. And similarly, अगर हम थर्ड इक्वेशन के साथ यही कहेंगे, similarly on multiplying equation 3 by ru and rv scalarly and using 5, we will get
Again, two equations, two variables. F sub v minus 1 by 2 g sub u is equal to ne plus mu f, and 1 by 2 g sub v जो होगा वो बराबर होगा nf plus nu g. Again, and therefore solving for now n and nu, solving for n and nu, we get, because these are two equations in two variables, तो हमें मिलेगा n is equal to 1 by twice h square into twice g fv minus g gu minus fgv, and nu जो है वो बराबर होगा 1 by twice h square into egv. मैं चाहूंगा तुम घर पे इसको अच्छे से करो. twice f sub v, मतलब पहला जिस तरह हमने किया ना डिटेल में, पहला सेट ऑफ टू वेरिएबल्स, you just have to solve equations using cross multiplication method. So इस तरह से ये 10 इक्वेशन अगर हम माने, so हमारी जो 8, 9 और 10 इक्वेशन है, नहीं 7 नहीं 8 होनी चाहिए ना, it should be equation 8, यानी हमारी जो इक्वेशन 6, 7 और 8 है वो हमें देती हैं the values of lambda mu nu जो हम चाहते थे. तो hence हम लिख सकते हैं the values of L and N and lambda mu nu are given by equations 6, 7 and 8 in terms of EFG and their partial derivatives. With respect to U and V. लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि हमें पता है हम हमेशा सरफेस को ऐसे रिपैरामीटराइज कर सकते हैं कि उसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है वो ऑर्थोगोनल है, यानी हम f को 0 मान सकते हैं. ठीक है, तब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि अगर f 0 है, that can be done, and we can simplify them if we choose our parametric or curves are orthogonal. Now, if the parametric curves are orthogonal, क्योंकि हमने एक रिजल्ट किया है, हम ऐसे रिपैरामीटराइज कर सकते हैं अपनी सरफेस को such that the parametric curves are mutually orthogonal. और जैसे हमारे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस हैं उसमें तो होते ही होते वो ऑर्थोगोनल है हमारी पैरामीट्रिक कर्व्स. तो ऐसी सरफेसेस के लिए f0 होगा और हमारा और h स्क्वायर जो होगा वो होगा सिंपली eg, बिकॉज h स्क्वायर इज eg माइनस f स्क्वायर. और हमारा l फिर बन जाएगा सिंप्लीफाई होके 1/2 ना, ऊपर के वैल्यूज में हम देंगे e sub u by e एंड m होगा e sub v by twice e, और n होगा फिर माइनस g sub u, ये सारे सब्स्टिट्यूट करके twice e. इसी तरह से अपना लैम्डा होगा माइनस e sub v डिवाइडेड बाय twice g, म्यू होगा g sub u डिवाइडेड बाय twice g, और म्यू होगा g sub v डिवाइडेड बाय twice g. और इस तरह से हमारा वो सिंपल हो जाएगा. Hence, the Gauss formulae बन जाएंगे easy to handle actually. Gauss formulae reduced to R sub uu जो अपना होगा that would be equal to ln, of course, plus this small n 1/2 e sub u divided by e times ru, then minus e sub v divided by twice g, यानी lambda into r sub v,
इसी तरह से आर यू बी जो होगा वो बराबर होगा m टाइम्स n प्लस 1/2 e sub v by e r sub u माइनस ये प्लस आएगा यहाँ पे gu divided by twice g r sub v, यहाँ gu है। तीसरी वाली इक्वेशन r sub v बन जाएगी n times the normal vector n plus माइनस आएगा यहाँ पे कि n जो है वो माइनस है 1/2 g sub u by g ru and plus mu that is 1/2 g sub v by g ru। ये तो मतलब गाउस फॉर्मूले हो गए, मतलब इजी मतलब टू हैंडल, वरना वो सारा सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसमें करेंगे जो ना हमने निकला यहाँ पे न्यू के लिए तो ये काफी लंबा चौड़ा है, बट फॉर पैरामीट्रिक ऑर्थोगोनल कर्व्स मतलब पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल है, यू कैन सिंपलीफाई इट। लेकिन हम इसको और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको हम याद रख सकते हैं आराम से, and these can be rewritten as these can also be written as मतलब ये ऐसे इजी है आर यू यू नहीं अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, नहीं ऐसे ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा ये सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा सिंपलीफाई करना मुश्किल है। राइट, एनीवेज तो ये तो अब तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज है, show that for a surface in Monge's form and z is equal to fxy, अगर Monge's form में हो with xy as parameters, L जो है यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल था need to be pr divided by h square, m जो होगा मतलब यहाँ पर भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा in terms of these partial derivatives with respect to x and y, and n is equal to pt divided by h square, or lambda is equal to qr divided by h square, and mu is equal to qs divided by h square, or mu is equal to of course qt by h square. And you have to remember what is r, and r is del मतलब p is of course del z by del x, है ना। इसी तरह से तुम्हारा q होगा what del z by del y, and r is equal to del p by del x, s is equal to del p by del y, and t is equal to del q by del y। मतलब ये तो तुम मतलब ये हमने एक जगह किया था, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं, you just have to treat this as u and this as v और सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे तुम्हें पता है e अगर हम इवैल्यूएट करेंगे वो मिलेगा तुम्हें 1 + p स्क्वायर, f मिलेगा तुम्हें ऑफ कोर्स pq, और g मिलेगा तुम्हें, ये तो तुमने इससे पहले भी हमने किसी जगह यूज किया था, और फिर e सब u होगा एक्चुअली इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना डिफरेंशिएट। Now this would be del z by del x का स्क्वायर, मतलब and you see how है, इसी तरह e v वगैरह बाकी तुम उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। Now we have another thing, जो हमें next step है to actually show that the Gaussian curvature is intrinsic. Of course इसके formulae काफी complicated है, लेकिन we want the existence, and actually we can write the Gaussian curvature k, which is given by ln minus m square divided by eg minus f square, तो हम इनको लिख सकते हैं in terms of e of g and its partial derivatives। तो उसी के जो हमारा नंबर 2 रिजल्ट है वो है गाउस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
वो ये है कि टी स्क्वायर का मतलब ये जो यहाँ न्यूमरेटर यानी ln minus m square is also written as t square. Okay, तो t square can always be written as, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इवेलुएट करना इजी है लेकिन फॉर्मूला जैसे it is 1/2 into twice f u v minus e v v plus minus g u u plus m square e plus twice m mu f plus mu square g and then minus l n e plus l mu plus lambda n times f plus lambda mu g. Now this is always equal to this, where t square is equal to ln minus m square and l n m and lambda mu are Christoffel symbols. अब तुम देखोगे अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने एक्चुअली अपना प्रूव जो मैं कह रहा था वो प्रूव हो गया। अब मुझे पता है ये जो LMN है और lambda mu जो मेरा पहला रिजल्ट है वो कहता है this can be written in terms of E of G, है ना, and its partial derivatives. अब इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ फिर E, F, G, their partial derivatives and Christoffel symbols, which are themselves in terms of E of G and their partial derivatives. It means this whole right hand side can be written. Of course वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा, जब हम LMN और lambda mu को भी अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो whole जो ये right hand side होगा it would be only in terms of E of G and their partial derivatives. तो फिर अगर मैं K के फॉर्मूला पे ध्यान दूं तो इसमें डिनोमिनेटर तो है ही in terms of E of G, तो इसका न्यूमरेटर भी हो जाएगा in terms of E of G and its partial derivatives. So then K has been written, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया then it automatically means that K can be written in terms of Christoffel symbols and the partial derivatives of E of G. That means it can be written in terms of E of G and its partial derivatives, because Christoffel symbols themselves by the previous result can be written in terms of E of G and its partial derivatives with respect to n. तो हमारा हो गया proof that Gaussian curvature can be written in terms of E of G and its partial derivatives. Now from Gauss formula ये prove करना भी उतना difficult नहीं है, मतलब actually it's more of a verification. Now from Gauss formula जो हमने इससे पहले किए थे वो हमें मिलेगा R UU डॉट RVB. तो अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं तो RUU कहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं RUU जो है वो हमने लिखा था ln RU ln बिल्कुल सही प्लस lambda RV plus स्मॉल l नहीं स्मॉल small l l RU RU प्लस lambda RV RV गुड, और RVV जो था वो बराबर था NN के LMN, तो स्मॉल n RU प्लस and then न्यू R सब, मगर इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना, as we can see ये वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि n डॉट RU भी 0 n डॉट RV भी 0, इसी तरह से n डॉट RU भी 0 n डॉट RV भी 0, यानी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तीनों को तो बचेगी खाली ये वाली टर्म, राइट। फिर अगर इससे करूंगा तो ये 0, तो बचेगी ये और ये टर्म, यानी इसी तरह से फिर जब इससे करूंगा तो ये वाली 0 बचेगी दिस एंड दिस। तो अगर मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूं तो पहले वाले में मुझे मिलना चाहिए सिंपली दिस ln, है ना, और देन आई शुड गेट n डॉट n जो कि 1 है ना, और n का इसके साथ और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, देयरफॉर आई वोंट राइट इट। फिर आएगा मुझे ये l के साथ जो पहली वाली टर्म खत्म, so it should be ln RU dot RU, so I should have
ln ru dot ru plus I should have l new ru dot ru. ये तो दूसरे वाली टर्म से हो गया, अब तीसरे वाले से होगा, ये तो 0 आएगा because rv dot n तो 0 है. Then add I should also have l नहीं lambda n ru dot rv and I should have lambda new rv dot rv. I think I have not dropped any term और n dot n तो 1 है, so that would be ln और कुछ बचेगा. Then I should have ln dot ln e है ना plus ln because ru dot re e and then इन दोनों को मैं combine कर सकता हूँ because dot product is commutative, so it would be l new plus lambda n times f because ru dot re is f and plus of course lambda new g because ru dot मतलब this would be ruu dot ruv and similarly ruv dot ruv अगर मैं उसको करूं तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे that would be m square plus m square e plus twice m mu f plus mu square g. अगर मैं खुद के साथ इसका ले लूं dot ruv का साथ ruv is actually equal to it is mn plus this small m ru plus mu times rv. इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. I think you will get it. 4 ही टर्म्स बनेगी क्योंकि इसमें काफी कैंसिलेशन है. हाँ 4 खत्म. एनीवेज तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दूं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली ये टी स्क्वायर का इवैल्यूएट करना. वी आल्सो नो दैट ये हमने किया था उसी में. वी आल्सो नो दैट व्हाट हमने किया था ev जो है is equal to twice ru dot ruv एंड इसी तरह से हमने किया था f sub u is equal तुम चाहे तो यहाँ फिर से इवैल्यूएट भी कर सकते हो. It would be r sub u dot r sub uv plus r sub uu dot r sub v. इसी तरह से g sub u जो है वो बराबर है twice r v dot r u u. I think so. So this is vv तो g किसके बराबर होता है vv तो u के साथ करेंगे तो फिर से देखता हूँ मैं. It should be rv dot ruv है ना, यहाँ पे uv होना चाहिए. ठीक मैंने किया. g किसके बराबर है? It is rv dot rv तो u के साथ करेंगे तो uv. ठीक है ठीक है. ओके तो अब अगर मैं इसको फर्दर मतलब एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. देखो तुम बोलोगे ना मैं हवा में ये कर रहा हूँ शायद, लेकिन मैं सिर्फ अपने इस पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है ना. तो ये तो खैर मैंने उनका ये तो तुम्हें याद रखना है, लेकिन अब मैं सिंपली देख रहा हूँ यहाँ पे EPB है, EUV है, GUU है, ये जो तीनों है मैं इनको इवेलुएट करना चाहता हूँ. ठीक है ना, ताकि फिर मैं दिखाऊं कि राइट हैंड साइड हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीस वैल्यूज. ठीक है, तो यही हमें देखना है. तो अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए EVV. EVV यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना. EVV यहाँ पे है, GU यहाँ पे है, FUV यहाँ पे है, तो मैं ये इवैल्यूएट कर देता हूँ. सो EVV बराबर होगा, इसको पार्शियली करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू V, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक को ऐसे ही रखेंगे, एक को ट्वाइस RUV डॉट RUV प्लस आई शुड हैव R sub u को अब ऐसे ही रखेंगे तो देन इट शुड बी RUU. मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल. ठीक है ना, वो डरने की बात नहीं है. एक्चुअली होना चाहिए RUV विद रिस्पेक्ट RUVV हाँ RUVV हाँ
वीवी होना चाहिए, हाँ आर यू वीवी होना चाहिए, राइट, इट शुड बी 1 to 2 बेसिकली, है ना, यू वीवी। ओके, इसी तरह से अगर मैं जी सब यू यू इवेलुएट करूं, वो बन जाएगा ट्वाइस आर सब यू वी डॉट आर सब यू वी, देन प्लस आर सब वी डॉटेड विद आर यू चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यू यू वी। अब यहाँ पे यू यू वी होना चाहिए। आई एम assuming that mixed partial derivatives are the same, मतलब इसी तरह से एफ यू वी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले इसको पकड़ते हैं, तो शुड बी आर यू वी डॉट आर यू वी, देन प्लस आर यू डॉट आर यू वी वी, देन प्लस दूसरी वाली टर्म को पकड़ते हैं, दैट शुड बी आर यू यू वी डॉट आर यू प्लस आर यू यू डॉट आर वी वी, ठीक है। हेंस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए ना यहाँ ट्वाइस एफ यू, मतलब मैं यही निकालूंगा। हेंस अगर मैं ढूंढना चाहूँ ई वी वी माइनस जी यू यू, प्लस कर देते हैं, प्लस है वहां पे, माइनस ट्वाइस एफ यू वी, वो बराबर होगा, मुझे लगता है इसमें काफी कैंसलेशन होगी अब। What do I have? EVV को पकड़ो पैसे, EVV है ये, है ना, so I've got twice RU dot RV, लेकिन यहाँ पर भी होगा ऐसा RUV डॉट, है ना, क्योंकि twice FUV से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली और ये टर्म तो कैंसिल हो गई। इसी तरह से EVV में है RUVV, UVV है कहीं पे, है, हाँ UVV है यहाँ RU डॉट RV, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी। इसी तरह से यहाँ से देखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस आर यू वी, तो ट्वाइस आर यू वी नहीं है, आर वी आर यू वी, हाँ ये और ये टर्म, यानी एक्चुअली बचेंगी खाली ये दो टर्म, यानी ये होगा ट्वाइस आर यू वी डॉट आर यू वी माइनस ट्वाइस आर यू डॉट आर वी। नाउ बट हम तो वो कर चुके हैं ना ये इक्वेशन, इट इज जस्ट ट्वाइस दिस थिंग माइनस दिस थिंग, है ना, और यूवी, है ना, यू मैंने क्या किया था पहला, नहीं मैं गलत लिखा था यहाँ पे, दिस इज, है ना, इट इज आर यूवी, यानी इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज बेसिकली दिस इज एक्चुअली ट्वाइस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, so let me write it down, तो ये इसके बराबर है, चलो ऐसे ही रखते हैं इसको, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 3। और चाहे तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बेटर स्टिल इसको अगर हम ऐसे लिखें, आर यू वी डॉट आर यू वी माइनस आर यू यू डॉट आर वी वी इज इक्वल टू 1/2 ई सब वी वी प्लस जी सब यू यू माइनस ट्वाइस एफ यू वी। सो अब इसको अगर 3 नाम दें, so what we do now, adding 1 and 2 and subtracting third, what you would get is exactly what we want. Adding 1 and 3, and subtracting 2, वही मुझे लगा, adding 1 and 3, अगर हम 1 and 3 को ऐड करें, ये एक ही पेज पे होती, and subtracting equation second, subtracting this one, second कहाँ गई इधर, अगर मैं 1 and 3 को ऐड करता हूँ और सब सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आई थिंक मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो आई वुड गेट बेसिकली, लेट मी, मैं ये दूसरे पेज पे,
एडिंग 1 and 3, तो 1 RUU RVV को 3 के साथ मैंने ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करके। और सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, ठीक है, 1 and 3 को सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, तो 1 and 3 1, तो 1 वाली लेफ्ट हैंड साइड तो खत्म हो गया। सो राइट हैंड साइड में कहाँ बचा, एडिंग 1 and 3 सब्ट्रैक्ट, यानी RUV सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 की टर्म, यानी RUV मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे जरा रफ करें, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऐड कर रहा हूँ RUU डॉट RUV माइनस RUU डॉट RVV, फिर मैं ऐड कर रहा हूँ इसको फर्स्ट और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकेंड। फर्स्ट को ऐड करने का मतलब RUUVV प्लस RUU डॉट RVV, सो दिस इज एडिंग, 0 आ रहा है। तो फिर होगा सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड। आई थिंक सेकेंड में क्या है, सेकेंड में यही है RUV डॉट RUV, RV ये सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा 0, 0 इट मीन 0 इज इक्वल टू, अब जरा बाकी राइट हैंड साइड को भी पकड़ते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है, यानी शुड बी 1 प्लस दैट, ठीक है, देखते हैं। आई विश आई कुड कट एंड पेस्ट इट, क्योंकि ये पेज पे घुमाना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से देखता हूँ। इट वुड बी, फर्स्ट क्या था, इट शुड बी ln प्लस lne प्लस lnu प्लस lambda n times f plus lambda mu g, that's 1. Then I'm adding third, that is 1 by 2 twice f sub uv minus evv, वही था थर्ड का राइट हैंड साइड क्या था, हाँ जी, evv guu evv, नहीं मुझे evv लिखना चाहिए, थर्ड का राइट हैंड साइड क्या है, EBV plus GUU ठीक है, evv plus guu minus twice FUV. twice FUV. Then I subtract the third, subtract the second. What was the second? M square जो भी है, तो second जो है हमारा, that is M square plus M square E plus twice M mu F plus mu square G. Okay, तो it implies that अगर मैं ln minus m square को एक साइड पे रखूं, क्योंकि वही मुझे दिखाना है किसके बराबर है, because that's t square, ln minus m square, बाकी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, you will get something like, इसको अगर पहला वाले टर्म अगर मैं ऐसे ले जाऊं, इसको अगर माइनस में ले जाएंगे तो ये बनना चाहिए twice FUV minus EVV minus GUU, then I should have plus। अब कुछ नहीं करना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना, क्योंकि ये जो माइनस है वो इस साइड पे जाएगा तो प्लस, तो इट शुड बी m square E plus twice m mu F plus mu square G, और चूंकि मैं दूसरे साइड पे ले जा रहा हूँ इसको, तो माइनस था तो प्लस था, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, so that would be, ये तो मैं, this has been accounted for, so it should be ln E plus L nu plus lambda n times F plus lambda nu G, जो कि बराबर है टी स्क्वायर के, जो मुझे एक्चुअली इवैल्यूएट करना, दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था, दैट टी स्क्वायर इज लाइक दिस। सो वी डन। सो अब एक्चुअली लोगों ने बहुत कोशिश की है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करें, मतलब मैं ये थोड़ा ना याद न रहने वाला, लेकिन क्या करें, तो इसको एक कोरोलरी में लिख सकता हूँ, Gaussian curvature
मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं curvature is intrinsic, और इसी स्टेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Gaussian curvature K can be written in terms of the first order fundamental magnitudes and their partial derivatives. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम Gaussian curvature in a corollary depends only on metric. मेट्रिक का मतलब EFG पे डिपेंड करता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स कैसे प्रूव होगी? नाउ प्रूफ अगर कॉलरी का मुझे लिखना होगा, नाउ K is equal to ln minus m square divided by EG minus f square. Now since ln minus m square is equal to, जो तुम लिखोगे ना, by above theorem, कैसे लिखते हैं? By above theorem ln minus m square can be written in terms of the partial derivatives of EFG with respect to U and V and the Christoffel symbols क्या था उनका नाम, L, M, N and lambda mu बट जो हमने उससे पहले किया था by क्या नाम था, fundamental equations of Gauss's fundamental equations, fundamental formulae जो भी था, Gauss formulae L and N, they are Christoffel symbols. Christoffel symbols can be written, यहाँ लिख लो Gaussian curvature K is equal to Gaussian curvature, यानी ये Gaussian curvature है, K is equal to this, can be written in terms of EFG and its partial derivatives with respect to U and V with respect to U and V. Hence ये सारा कुछ जमा करके, क्योंकि नीचे है ये G minus F square ln minus square, hence ln minus M square can be written in terms of EFG and their partial derivatives with respect to U and V. Okay, and therefore, hence K can be written entirely in terms of EFG and its partial derivatives with respect to U and V. अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एग्जाम में अगर तुम्हें ये कॉरलरी आ जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आ गया, मतलब या तो बताना हो x ये या इस, ये तीनों में से एक भी स्टेटमेंट दैट Gaussian curvature depends only on metric can be written in terms of first order and their, तो इसके लिए तुम्हें ये दोनों रिजल्ट्स प्रूव करने होंगे, है ना.
एक तो ये गाउस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो गाउस फॉर्म, तो फिर तुम उसके मतलब फाइनली तुम कंक्लूड कर सकते हो दैट Gaussian curvature is intrinsic. It only depends upon metric rather than the equation of the surface equation. Okay. इसको लोगों ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश ऐसे भी की है, अगर तुम देखोगे ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ln minus m square can be written as 1/2h into del by del u of FEV divided by EH. लेकिन तुम सोचो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना GU by H, I don't think ये अपना कोई पर्पस सर्व करता है frankly speaking, into del by del V of, ये याद रखना भी इतना आसान नहीं है, हालांकि वो तो नामुमकिन है वो पूरे का पूरा एक साथ याद रखना, लेकिन इन पार्ट्स तुम रख सकते हो। मतलब मुझे भी याद नहीं है, वैसे किसको याद होगा पूरे का पूरा ये फॉर्मूला, F E sub U divided by EH. ये मतलब you can also write it like this. Okay. Gaussian curvature को हम लिख सकते हैं ऐसे, मतलब यूजिंग द सेम, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, हमें पता है k इज इक्वल टू k किसके बराबर है, लेकिन इसको हम लिख सकते थे also ln minus m square divided by h square because h square is h minus, तो हम इसको लिख सकते हैं intrinsic formula for, in terms of EGF, intrinsic formula for Gaussian curvature. कैसे, मतलब इसको h square से डिवाइड करना, यानी k is equal to ln minus m square divided by h square, तो इसको h square से थोड़ा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/2 h into del by del u of E F E sub b divided by E h minus G sub u divided by h plus 1/2 h del by del v of twice f sub u divided by h minus E sub v divided by h minus f sub u, here, okay, f sub u divided by EH. That's the answer. तुम चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इसको कंबाइन कर सकते हो, लेकिन उससे भी कौन सा कयामत हो जाएगी, नहीं EH को मतलब डिनोमिनेटर सेम करके, and of course तुम्हें पता है यहाँ h square is equal to EG minus h square. So this is clearly, अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ तो अब है ना कि k can be written in this way, है ना, only EFG है इसमें और उसके partial derivatives, isn't it? So this would be the intrinsic formula for Gaussian curvature. But तुम्हें सोचना है ये खत्म नहीं हुआ है ना, it is actually partial derivative of this damn thing. और तुम सोचो अगर तुम इसको करोगे तो यहाँ पहले quotient rule लगेगा, है ना, फिर subtraction rule और फिर अंदर product rule, तो ये काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। So इसके बाद है हमारा एक और, लेट्स एंड इट हियर, वो बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। सर स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आज एक ही क्लास होती क्योंकि चलो की ठीक, प्रिपरेशन, चलो ठीक है, आज एक ही करते हैं। ओके सर, ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।